So yesterday we have completed that exchange of gases at the various surfaces, mechanism of breathing. Now today we will study the transport of gases. So you know that the blood transports nutrients, vitamins, gases within the body. Some amount of gases, they get dissolved in the plasma and transported, whereas some amount is transported in the बाउंड स्टेट. तो कुछ गैसेस तो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती हैं, फिर ट्रांसपोर्ट होती हैं, और कुछ जो है किसी सब्सटेंस के साथ बाइंड होकर के बाउंड स्टेट में ट्रांसफर होती हैं. So oxygen and carbon dioxide, they bind with the hemoglobin present in the RBC. You know that the RBC has the affinity with the oxygen. So great affinity. तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन, एंड इन दिस बाउंड स्टेट दे आर transported. So we will study the transport of oxygen. So here you can see the transport of oxygen as well as the carbon dioxide. Both the processes are shown. This is oxygen, this is carbon dioxide. Carbon dioxide, it is eliminated by the body cells and then dissolved in the blood, and then after it is sent out. Okay, and this is the oxygen which enters into the that arterial blood and then combines with the hemoglobin. So oxygen is transported in three ways. What are the three ways? The first one is there in the dissolved form. So here about 3% of the oxygen, it is transported in the dissolved form or dissolved state through the plasma. तो ये जो 3% जो ऑक्सीजन है ये प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है. Then the next is oxyhemoglobin. So about 97% of the oxygen is transported by RBCs in the blood, and hemoglobin is made up of two parts, that is heme and globin. This structure you have studied already. So heme is the iron part and globin is the protein. Okay, so this hemoglobin, it reacts here with the oxygen. Fine. So and then it forms the oxyhemoglobin. So this red colored iron containing pigment which is present in the RBC binds with oxygen in reversible manner to form oxyhemoglobin and transport. Reversible manner, why I am saying, because it dissociates further in the टिश्यू सेल्स. तो ये बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ये क्या है? HbO2. दिस इज द ऑक्सीहीमोग्लोबिन. Now oxygen binds with the hemoglobin at the lung surface and get dissociated at the tissues. Under the high partial pressure, oxygen easily binds with the hemoglobin in the pulmonary blood capillaries, and when this oxygenated blood reaches to the different the tissues, okay, these are the tissues. Here these structures, they are the lung, means this exchange is taking place in the alveoli in the lungs. So when this oxygen reaches to the tissues here, you know, the partial pressure of oxygen decreases and bonds holding oxygen to hemoglobin become unstable, and because of this oxygen is released into the blood capillaries. This already I explained you that the difference in the partial pressure actually causes diffusion of the gases. तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का कम होता है, एंड देन द आउटर साइड ब्लड कैपिलरीज, तो जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होती है सेल्स के अंदर. नाउ ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन, आर यू गेटिंग इट? डिसोसिएशन मतलब ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है ये जो है डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है इसके कंपोनेंट्स में, और इसके कंपोनेंट्स है हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन. So this is the process known as the dissociation of the oxyhemoglobin. Now oxyhemoglobin dissociates near tissues to increase in acidity and decrease in pH. So some changes are taking place here when this dissociation of oxyhemoglobin takes place. क्या changes होते हैं? ये जो टिश्यूज हैं इनके अराउंड एसिडिटी इंक्रीज होती है और पीएच जो है वो डिक्रीज होती है. आपको पता है कि एसिडिटी इंक्रीज होना मतलब कि पीएच का 7 से बिलो होना.
तो इसके कारण जो है क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो ये जो डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, एक तो पीएच रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर पीएच जो है वो लो हो जाती है, इसके कारण भी जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ब्रेक होता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई है तब भी होता है। इन अ नॉर्मल पर्सन द हीमोग्लोबिन लेवल इज अबाउट 15 gram per 100 ml, and the capacity of 1 gram of hemoglobin to combine with oxygen is 1.34 ml. इतना जो है ऑक्सीजन जो है कंबाइन हो सकता है 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ। Therefore, arterial blood carries about 20 ml of oxygen per 100 ml of blood. Under normal condition, oxygen levels they fall to about 14.4 ml in the values. So, what it indicates that under normal condition, approximately 5 ml oxygen is transported by the blood. So, in the normal condition, how much oxygen? 5 ml of the oxygen is transported by the blood. And under strenuous condition, जब stress हो like exercises, the oxygen level it falls to about 4.4 ml, है ना, 5 ml से ये डाउन हो करके 4.4 ml हो जाता है. That is approximately 15 ml of oxygen is transported by hemoglobin during the exercises. So let me see here that oxygen dissociation curve. Okay, this is important. This is in your syllabus also. So kindly mark it in the book. Okay, so this is oxygen dissociation curve. What is the oxygen dissociation curve? A graphical representation between the partial pressure of oxygen. This is the partial pressure of oxygen and the percentage saturation of hemoglobin with oxygen. Okay, so this is the percentage saturation with of hemoglobin with the oxygen. This is known as the oxygen dissociation curve और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी होता है. सो पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का उसके और जो परसेंटेज सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, इन दोनों के बीच में जो कर्व फॉर्म होता है दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. नाउ you can see that this curve is sigmoid. Okay, here it is very clearly seen that the curve is S shaped. It is sigmoid, not the straight one. So the amount of oxygen that can bind with the hemoglobin, it is determined by the partial pressure. मतलब कितना अमाउंट ऑक्सीजन के साथ जो है ऑक्सीजन का बाइंड होगा हीमोग्लोबिन के साथ, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है. सो द परसेंटेज ऑफ द हीमोग्लोबिन दैट इज बाउंड विद द ऑक्सीजन, कितना परसेंट हीमोग्लोबिन बाउंड होगा ऑक्सीजन के साथ, इट इज नोन एज द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. दिस इज shown here, this percentage saturation of the hemoglobin. So these are all the terms describing the oxygen dissociation curve. Now we will see in the graph that hemoglobin saturated to about 50% when the that partial pressure is 25 mmHg. So near about अगर ये जो है 25 mmHg partial pressure, we can take this value. ये 25 mmHg जब partial pressure होता है तो हीमोग्लोबिन का जो saturation है वो कितना हो जाता है, 50% के about हो जाता है. So we can see these points. जितना partial pressure increase हो रहा है उतना ही जो है ये saturation बढ़ता चला जा रहा है. तो जब हम ये रीडिंग देखेंगे कि 25 mmHg partial pressure पहुंचा है तो कितना saturation हो रहा है, percentage of saturation 50% हो रहा है. Okay, and the partial pressure at which hemoglobin saturation is 50%, this is known as the that P50. Okay, so this is termed as the P50. Now factors which affect the oxygen dissociation curve. So this curve is very useful in studying the effect of like partial pressure of oxygen, carbon dioxide, etc. on binding of oxygen with the hemoglobin. तो
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड होती है तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, उसको भी हम इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के थ्रू स्टडी कर सकते हैं. सो for example we will take if partial pressure of oxygen decreases, PO2 जो है वो डिक्रीज होगा, देन क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम HB टेक्स प्लेस विच अकर्स इन टिश्यू. यस, अब जैसे जैसे इसका पार्शियल प्रेशर कम करते चले जाएं तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. ओके, टिश्यूज के अंदर. इट शिफ्ट्स द कर्व्स राइट, और ये यहाँ पर जो है कर्व्स जो है वो राइट शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ आकर के इसकी जो एफिनिटी है वो इट रिड्यूसेस एफिनिटी, है ना, ऑक्सीजन के लिए इसकी एफिनिटी कम हो जाएगी और ये जो है क्या होगा, डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा और कर्व जो है वो राइट डायरेक्शन में जो है मूव करेगा. वेरियस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग द कर्व आइदर लेफ्ट टू राइट. तो आपको दिख रहा होगा कि कर्व इज शिफ्टिंग हियर towards the left also and towards the right also. Okay, तो ये क्यों होता है that we will see. Okay, so क्योंकि ये एक लिमिट तक ही इंक्रीज हो रहा है, यू कैन सी हियर, फिर से रिडक्शन हो रहा है और एक जो है पॉइंट पर आ करके फिर ये स्टेबल हो रहा है. तो हम सबसे पहले देखते हैं शिफ्ट टू राइट. राइट शिफ्ट कैसे होगा, shifting of curve towards right, it indicates the dissociation of oxygen from hemoglobin. जब राइट शिफ्ट हो रहा है तो ये क्या शो कर रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से अलग हो रही है. एंड दिस डिसोसिएशन अकर्स इन द टिश्यूज. तो ये कहाँ होता है, टिश्यूज के अंदर होता है. एंड दीज द कंडीशंस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एक तो पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का लो हो जाए, तो लो पार्शियल प्रेशर पर जो है वो डिसोसिएशन होने लगता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है. ओके, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा. इसके कारण जो ये कर्व जो है किधर शिफ्ट करेगा, राइट शिफ्ट करेगा. ओके, देन वी विल कम टू द नेक्स्ट. हियर ये जो डॉटेड लाइन है ये वही शिफ्ट बता रही है. द नेक्स्ट वी विल सी द लेफ्ट शिफ्ट क्या होगा. इसके पहले एक और इफेक्ट है, बोर्स इफेक्ट, वो भी हम स्टडी करेंगे कि बोर्स इफेक्ट क्या होता है. बिफोर दैट आई विल एक्सप्लेन यू कि लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब है. तो ये जो शिफ्ट है इंडिकेट करता है एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन. ये राइट के अपोजिट होगा, राइट में ब्रेक हो रहा है और लेफ्ट में कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ. तो इसके लिए कौन सी कंडीशंस हैं, जबकि ये जो है लेफ्ट की तरफ जो है मूव होगा, तो यहाँ पर जो है हाई पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, डेफिनेटली प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ये ज्यादा हो जाएगा, एज वेल एज जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो कम होगा. देन लेस H+ आयन एंड हाई pH. ओके, सो H+ आयन भी जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो pH जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और टेम्परेचर होगा लो. तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा और ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो एसोसिएट होंगे. सो दिस इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. नाउ नेक्स्ट वन वी विल सी बोर्स इफेक्ट क्या होता है. तो जो रिलेशनशिप है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की, जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू, it is always sigmoid in the shape as I showed you already, or a rise in PCO2 or fall in pH. okay, जब जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का जब वो लो होगा, ओके, लो pH, और जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो फॉल होता है, और द फॉल इन द pH डिक्रीजेस, it decreases oxygen affinity of hemoglobin. okay, rise in PCO2, PCO2 का राइज होना मतलब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का राइज होना, या फॉल इन पीएच डिक्रीजेस ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. ओके, सो ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए रिड्यूस करता है, रेजिंग द P50 वैल्यू. और P50 वैल्यू जो मैंने अभी डिस्कस की थी, द पार्शियल प्रेशर एट विच हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इज 50%, तो ये P50 होता है. P50 की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये जो है जो इंक्रीज है P50 का, दिस इज नोन एज द बोर्स इफेक्ट. मीन्स P50 वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ that PO2 at which hemoglobin is 50% saturated with oxygen to form oxyhemoglobin.
And conversely, a fall in PCO2 and rise in pH increases the oxygen affinity of hemoglobin. तो ये तो नॉर्मल दे रखी है यहाँ पे वैल्यू CO2 की, और ये है सॉरी लो CO2 है, pH हाई है, यहाँ पे हाई CO2 है, लो pH है. तो अगर PCO2 जो है वो फॉल होगा तो pH जो है वो पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का वो फॉल होगा, तो pH जो है वो इंक्रीज होगा. और हाई pH पर क्या होगा, लो जो है CO2 रहेगी, और हाई pH पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है इसके कारण जो है एफिनिटी जो है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के लिए वो इंक्रीज हो जाएगी. सो अंडरस्टूड. ये जो पूरा फिनोमिनन है ये बोर्स इफेक्ट है. वन मोर टाइम आई विल टेल यू दीज लाइंस, रिपीट दिस, that a rise in PCO2 or fall in pH decreases oxygen affinity of hemoglobin, raising the P50 value. This is called the Bohr's effect. And conversely, a fall in PCO2 and rise in pH increases oxygen affinity of hemoglobin. So this is Bohr's effect. And high that hydrogen ions, H plus ion concentration, decrease in pH means increase in acidity, and the high temperature, they are responsible to move the curve at the right side. तो ये जो right shift है उसमें ये Bohr's effect हम स्टडी करते हैं. So this is all about the oxygen dissociation curve. Now next we will come to the transport of carbon dioxide. Ma'am, your voice is breaking. Voice is breaking. This may be due to the network issue. Okay, so check your network. Now transport of carbon dioxide. अब transport कैसे होता है carbon dioxide का, that we will see here. So when oxygen reaches the body cells, oxidation of food takes place during the respiration process, and in this process CO2, H2O and energy are produced. You know कि जब जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है सेल्स के अंदर, तो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो टिश्यू सेल्स के अंदर CO2 प्रोड्यूस होती है, और CO2 जो है इन gaseous form diffuses out of the cell into the capillaries. तो ये है टिश्यूज, एंड हियर दैट द टिश्यू सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगी. तो ये क्या क्या वेज हैं थ्रू विच इट इज ट्रांसपोर्टेड. सो फर्स्ट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड थ्रू द प्लाज्मा. जैसे मैंने ऑक्सीजन का भी बताया था कि प्लाज्मा में डिसॉल्व है, तो 10% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is dissolved in the plasma, and in the dissolved form it is carried to the lungs, and carbon dioxide has high solubility than oxygen. तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा soluble है ऑक्सीजन के थ्रू, इसलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है नियर अबाउट 7 to 10% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ जो है 3% ही होती है, वाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है इट इज मोर देन दैट. नाउ सॉरी, अब बाइकार्बोनेट आयन देख लेते हैं. तो पहला तो ट्रांसफर हो गया कि डिसॉल्व फॉर्म में हो गया. अब जो सेकंड है वो बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में. तो जो बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म है इसमें 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट आयंस, ओके, SCO3 नेगेटिव, and transported into the plasma. So carbon dioxide diffuses into the RBC. Carbon dioxide जो है वो RBC में diffuse होगी, and then after you can see here it binds with water and form carbonic acid, this H2CO3. तो ये वाटर के साथ कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड फॉर्म करती है, एंड कार्बोनिक एसिड जो है फर्दर ये डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन को फॉर्म करता है, एंड दिस बाइकार्बोनेट आयन बीइंग द अनस्टेबल वन,
and this reaction is facilitated by an enzyme known as carbonic anhydrase. तो ये जो reaction है इसमें enzyme involve होता है carbonic anhydrase which is present in very high concentration in RBC and in small quantity in plasma. तो ये पूरा जो reaction है that is showing कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट होती है. तो दिस इज 70% ऑफ द carbon dioxide transported in the form of bicarbonate ion. Now we will see the next there that as the partial pressure of CO2 is high in the tissues due to catabolism there, that is breakdown of glucose into its component. So the diffusion of carbon dioxide occurs from tissues to blood. तो this phenomenon already I explained you कि यहाँ पर tissues में जो partial pressure है वो carbon dioxide का ज़्यादा होगा then the blood. तो higher partial pressure से lower partial pressure की तरफ जो है gases diffuse होंगी. Now at the alveolar site ये process जो है वो reverse हो जाती है. alveolar में क्या होगा कि CO2 and H2O are formed from HCO3 and H plus ion. तो ये जो CO2 और H2O हैं दे आर फॉर्म्ड, ये जो HCO3 नेगेटिव आयन और H प्लस आयन्स हैं ये एल्वियोलाई में जा करके जो है कंबाइन होकर के फिर से जो है H2CO3 फॉर्म करते हैं देन दे फॉर्म H2O एंड CO2. मतलब ये रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी लंग्स के अंदर. ओके टिश्यू से जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगी तो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होगी, लेकिन जैसे ही ये लंग्स के नियर जो एक्सचेंज होगा एल्वियोलर साइड्स में तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी. मींस हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करके फिर से H2CO3 बनाएंगे और ये H2CO3 जो है वो ब्रेक डाउन होकर के CO2 और H2 बनाएगा एंड दिस CO2 विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द alveoli of the lungs. This is occurring at that level. So bicarbonates ion जो है again means enter into the RBCs and bind with the hydrogen to form carbonic acid and then they form H2O and CO2. तो ये CO2 जो है finally diffuse हो जाएगी lungs के अंदर. अब one more we will see that the RBC के थ्रू कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन प्रोडक्ट बनता है दैट इज HbCO2. ओके तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के HbCO2 बनाती है आरबीसी के अंदर और नियर अबाउट जो है 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड इसी के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होती है. So these are all the three ways we have studied. First जो है डिसॉल्व फॉर्म में है, सेकेंड जो है बाइकार्बोनेट फॉर्म में है और जो थर्ड है वो है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में. एंड दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू ऑक्सीजन बट CO2 बाइंड्स नॉट विद द हीम पार्ट विद द प्रोटीन पार्ट. एक ही डिफरेंस होगा कि ऑक्सीजन जो है वो हीम पार्ट के साथ कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन के, बट कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन के साथ कंबाइन होती है, बाकी प्रोसेस सेम होता है. So this is all about the transport of carbon dioxide. Okay, this whole processes I have explained you in the dissolved form as well as in the form of bicarbonate ion as well as in the form of carb amino hemoglobin. So here one more important phenomenon which is known as the Hamburger's phenomenon. इसी के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड ये फिनोमिनन है. What is this Hamburger phenomenon or chloride shift? Okay, so here we will see that the concentration of the bicarbonate ion increases in the RBCs. It diffuses into the plasma along with the concentration gradient in exchange for chloride ion. If this is means incorrect, you will see this is chloride ion. So क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है बाइकार्बोनेट आयन की वो इंक्रीज हो जाती है आरबीसीज में. तो ये यहाँ आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज होकर के कहाँ चले जाते हैं, दे मूव आउट ऑफ द आरबीसी इन द प्लाज्मा. एंड हियर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है यहाँ पर उसको सेटअप करने के लिए एट द प्लेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन दे विल डिफ्यूज आउट, देन इन ऑर्डर टू कंपनसेट their deficiency, chloride ion enters into the RBCs to maintain the electrical neutrality. This phenomenon is referred as the chloride shift and helps to generate the bicarbonate ions. So
Uh, this is known as the chloride shift also, or Hamburger phenomenon also, where bicarbonate ions diffuse out into the plasma and chloride ions enter into the RBC at the level of tissue. And at the level of external respiration of alveoli, chloride ion moves out as the bicarbonate ions move in this is reverse chloride shift. अच्छा, ये कहाँ हो रहा है? दिस फिनोमिनन के बाइकार्बोनेट आयन बाहर और क्लोराइड आयन जो है अंदर एंटर कर रहे हैं, ये हो रहा है टिश्यूज के अंदर, और लंग्स के अंदर बिल्कुल इसका अपोजिट होगा. तो टिश्यूज के अंदर वी विल कॉल इट क्लोराइड शिफ्ट, और लंग्स के अंदर ये रिवर्स होता है. मीन्स क्लोराइड आयन जो है वो मूव आउट होते हैं और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो मूव इन होते हैं. मीन्स दिस क्लोराइड आयन विल मूव आउट एंड बाइकार्बोनेट आयन मूव इन द लंग्स. This is known as the reverse of chloride shift. Okay, so this is Hamburger's phenomenon. With the help of diagram you can explain it very well. So this is completed. Now regulation of respiration means what are the factors are there which regulate the process of respiration. So you know that the respiration is a reflex process, and voluntary control of respiration is possible for short period of about 40 seconds. Means 40 seconds तक जो है voluntarily we can control the respiration. And the pattern of the respiration is regulated by two mechanism. एक होता है nervous और neural mechanism, जिसको हम समझ रहे हैं कि हमारा nervous system control करता है. And the second is the chemical mechanism, means certain chemicals are secreted which control the process of the respiration. So let we see further what are the nervous one and what are the chemical one. So a specialized center present in the medulla region of the brain, which is known as the respiratory rhythm center. So in the respiratory rhythm center, which is primarily responsible for the regulation. तो यहाँ से जो है respiration का regulation होता है. Another center present in the pons region of the brain, which is known as the pneumotaxic center. जो पोन्स वाला एरिया होता है यहाँ पर, दिस इज द पोन्स, और पोन्स वाले एरिया में होता है न्यूमोटॉक्सिक एरिया, सॉरी न्यूमोटेक्सिक एरिया. न्यूमोटेक्सिक एरिया में इसका सेंटर है, रिदम सेंटर है. रेस्पिरेशन जो है पर्टिकुलर रिदम में होता है, तो ये जो है कंट्रोल करता है. देन द न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. तो यहाँ से inspiration rate जो है वो affect होती है, reduce होती है, और इस तरीके से respiratory rate जो है वो भी कम होती है, change होगा. Then a chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center. rhythm center से ही लगा हुआ जो है next होता है chemosensitive area which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. So in this way it affects the rate of the respiration. मेड्यूलरी रिदमिक एरिया, रिदमिसिटी एरिया भी है यहाँ पर. ये इंस्पायरेटरी एरिया है, एक्सपायरेटरी एरिया है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर. दैट ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. एंड रिसेप्टर्स आर ऑल्सो विच आर एसोसिएटेड, रिसेप्टर मतलब सेंसरी सेल्स, एसोसिएटेड विद द एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी. तो एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी के में भी जो है रिसेप्टिव सेंटर्स होते हैं, ये आर्टरी और एओर्टिक आर्च में. they can recognize the change in CO2 and H plus ion. तो जो CO2 increase हो रहा है या decrease हो रहा है, it can be recognized by these sensory receptors and concentration of hydrogen ion also, and send necessarily signal to the rhythm center for remedial action. So brain के अंदर तो है ही, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स मेडुला एंड पोन्स के अंदर भी हैं, और यहाँ पर जो है रिसेप्टर्स मसल्स एंड जॉइंट में, ये सेंट्रल जो है कीमो रिसेप्टर्स हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं. तो ये कीमो रिसेप्टर्स भी जो हैं ये जो है सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए. तो इस तरीके से जो है रेस्पिरेशन का जो रेट है वो जो है रेगुलेट होता है ना. न्यूमोटेक्सिक सेंटर ये यहाँ पर शो किया है पोन्स के अंदर. सो इन दिस वे
it is regulated. Now, disorders of the respiratory system, asthma, which is the difficulty in breathing, causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. Emphysema, this is chronic disorder where the alveolar walls are damaged, due to which the respiratory surface is decreased. क्योंकि वो एक एरिया है, वो फंक्शनल यूनिट है, वही डैमेज हो जाती है. दिस इज ड्यू टू द सिगरेट स्मोकिंग. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो कि ऑक्यूपेशन के कारण होते हैं, लाइक इंडस्ट्रीज के अंदर, स्पेशली दोस इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग. तो यहाँ बहुत ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है, दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप विद दिस सिचुएशन. सो अगर लॉन्ग एक्सपोजर होता है इस डस्ट से, देन इट कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस मतलब वहां पर जो है टिश्यू का प्रोलिफरेशन होने लगता है, फाइब्रस टिश्यू बढ़ने लगता है, एंड कॉजिंग अ सीरियस लंग डैमेज. जो है फाइब्रोसिस के कारण लंग डैमेज होते हैं, एंड वर्कर्स इन such industries should wear the protective mask. So these are the occupational hazards, and almost we have completed the portion, and now I will come to the doubt session. So